don't want to do anything, जब डरने में कुछ करने का मन नहीं होता है, and when you become very lazy, तब आलसी हो जाते हैं। then we say I'm tired. तब कहते हैं हम थक भी गए हैं। So that is how the many a time people speak this word. कई बार लोग ऐसे ही शब्दों को Or इस्तेमाल sometimes people always telling, oh, when they wake up, I'm tired. कई बार लोग सो के उठते हैं और फिर कहते हैं मैं थका हुआ हूँ। Or sometimes people, yes, work hard and they say I'm tired. हाँ, लेकिन कई बार लोग मेहनत करते हैं उसके बाद भी थक जाते हैं। And then sometimes people without doing nothing is tired. लेकिन कई बार लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी कहते हैं हम थके हुए हैं। In my place there is a one man, पासे कहती है मेरी जगह में एक आदमी है, very lazy person. बहुत ज्यादा आलसी है वो। Sunday then he will wake up early in the morning. संडे को और रविवार को सुबह जल्दी उठता है। And then my father-in-law, they used to talk about that man. और पास्टर के पापा उस बारे में बहुत बात करते हैं। Because Sunday is the day the people rest, not going to work for field. क्योंकि रविवार का दिन वो होता है बाइबल के अनुसार जिस दिन आप खेत पे नहीं जाते, काम नहीं करते, पर आप जल्दी उठते हो। So the whole town is in the church. तो पूरा गांव क्या होता है, चर्च के अंदर होता है रविवार के। So Sunday have no work. मतलब रविवार को काम नहीं That is करना। why you will wake up early in the morning इसलिए आप सुबह जल्दी उठते हो and will take bath आप नहाते हो and you will roam the village. और वो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, नहाता है। But Monday to Saturday, लेकिन सोमवार से शनिवार people need to go to work. लोगों को काम पे जाना होता So है। he will sleep till 12 o'clock. वो व्यक्ति सुबह सोता ही रहता है, 12 बजे तक सोता ही रहता है। Because people in the town, 6 o'clock they have already lunch. आप ये देखो गांव के अंदर सुबह 6 बजे ही खाना पीना लोग निपटा देते So हैं। 7 o'clock nobody is in the house. तो पास्टर कह रही मेरे गांव में 7 बजे के बाद घर के अंदर कोई नहीं रहता, सब People already left the house. सब घर छोड़ के खेत चले जाते हैं। Study, school, children they या went to स्कूल school. जाना है, कॉलेज जाना है, कोई 7 बजे के बाद घर And नहीं all रहता। the parents in the mountain. और सारे जो माँ बाप जो बूढ़े लोग होते हैं सारे पहाड़ों पे होते हैं। And the people who are taking care of the small kids only in the house. सिर्फ जो घर में छोटे बच्चे हैं और उनको संभालने वाले ही घर में रहते So हैं। that person lazy to work, that's why Monday to Saturday he will wake up late. तो पास्टर कह रही हूँ जो उनके गांव में व्यक्ति है वो सुबह सोता रहता है और सोमवार से शनिवार तक 12 बजे तक सोता ही रहता है। Till now that person is alive. अभी भी वो व्यक्ति जिंदा ही है। And then people say don't go with that person. और लोग कहते हैं उसके साथ ज्यादा मत रहा करो। And whoever associate with that man, parent doesn't like it. क्योंकि जो भी उस व्यक्ति के साथ घूमता है उस बच्चे के माँ बाप उसको डांटते हैं कि उसके साथ Don't go with that person. उसके साथ मत घूमो। And when we go with that person, और पास्टर कह जब उसके साथ कोई जाता है they will scold us. तो डांट पड़ती है। You will become lazy, don't go with अरे that. उस आलसी के साथ रहोगे आलसी बन जाओगे। So they used to tell us like this. तो ऐसा बोलते हैं। So there is when laziness is, is the curse that God has telling to us. तो परमेश्वर कहते हैं कि आलस एक श्राप या एक पाप की तरह है। So let us see today what the Bible talk about तो laziness. आज हम देखते हैं बाइबल क्या बताती है आलस के Let बारे us turn to Niti Vachan. में। नीति वचन Proverb. Yes. Niti Vachan talk about all the laziness. तो नीति वचन में बहुत सारी जगहों पर आलस के बारे में बात हुई है। Let us turn to the Niti Vachan and what the Bible say about the laziness. देखते हैं बाइबल क्या बताती है नीति वचन की किताब में प्रोवर्ब्स की बुक में Yes. चैप्टर I will just speak one by myself. Let us see the Proverbs chapter 15 verse 19. नीति वचन 15 का 19। Proverbs chapter 15 verse 19. I will read so many scriptures today. So Proverbs chapter 15 verse 19. 783 पेज नंबर 783 पुराना नियम नीति वचन की किताब 15वें अध्याय का 19वां वचन। The Bible says, "The path of the lazy people is like a thorn hedge, but the road of the decent people is an open highway." आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। See, the person who is the lazy जो व्यक्ति आलसी है is a thorny, like thorn that thorn that always disturb us. जैसे आप देखो कांटे होते हैं किसी भी पौधे के अंदर तो हमेशा परेशान करते हैं। So the road is not going clearly. इसका मतलब आलसी व्यक्ति का रास्ता कभी सीधा नहीं होता है। See, when there is a thorn in the road, आप देखो अगर रास्ते में you मार्ग are very difficult to get out very freely. अगर रास्ते के अंदर कांटे पड़े हो तो आप आराम से नहीं निकल So सकते। lazy man is like that, आलसी व्यक्ति भी ऐसा ही होता like है, a thorn. एक कांटे की तरह। They don't want to not to work and disturbing the people. तो आलसी लोग क्या होते हैं खुद भी कांटा होता है और दूसरों को भी परेशान करते हैं। And then also they don't want to do and they will tell the other person also disturbing. वो दूसरों को भी परेशान करते हैं। So and but the person who diligent and who is a work hard, लेकिन जो इंसान मेहनती होता है their way is open, highway is open. लेकिन उनका रास्ता हमेशा सीधा होता है, राजमार्ग लिखा है यहाँ पर। And then also let us
us see Proverbs chapter 26. खोलते हैं नीति वचन 26, Proverbs chapter 26 verse 16. Proverbs chapter 26 verse 14 to 16. नीति वचन 26 का 14 से 16. Yes, read Proverbs chapter 26 verse 15 to 16. 15 and 16. No, together. 15, 16, 17. हाँ. नीति वचन 26 14 से 14, 15, 16. जैसे किवाड़ अपनी चूड़ पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है. आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस के कारण कौन मुंह तक नहीं उठाता. आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है. Amen. See, what is the character of lazy people? आलसी व्यक्ति कैसा होता है? The character of the lazy people, even the plate that they have food, प्लेट में खाना तो रखा होता है उनके सामने, even they're very lazy to bring in their mouth. उनको आलस होता है कौन उठाएगा, कौन मुंह में डालेगा. Today, many people in the house, बहुत सारे लोग घर में ऐसे ही है. even I see here in India, पास्टर कह रही मैंने भारत में देखा है, men are really lazy in the house. जो आदमी लोग होते हैं अधिकतर बहुत आलसी होते The हैं. wife will bring tea in their bed. पत्नी बिस्तर पे लाएगी नीचे चाय I पीने, saw. And then also after drinking also, और पीने के बाद in the same place that they are sitting, they put the tea and cup. तो प्लेट के अंदर ही कप भी रखते थे, वही छोड़ते हैं. And after they come back from office, और ऑफिस से आएंगे they change their clothes, वो अपने कपड़े बदलते the हैं. pant that they wear. जो पैंट वो पहनते हैं, They just bring out the pen and they just move out pen is there. तो पैंट उतारते हैं, पैंट वहीं पे ऐसे I see my real life, one family. पास्टर कह रही मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है. And the wife also not pick up. और पत्नी भी थोड़ी आलसी होती Seen है, yesterday. वो भी नहीं उठाती, कल की पैंट पड़ी है. So come to the office, take out, come out and pen is there. And some people you eat food wherever you are sitting here also there's sometime when I used to be angry. When you drink cup, you put in your cup here. There. और इसलिए पास्टर कह रही कई बार मैं चर्च में भी लोगों को कहती हूँ कि हम खाते हैं पीते हैं, हम अपनी प्लेट कप वहीं छोड़ देते हैं. So some people like that, very lazy. बहुत ज्यादा आलसी होते हैं. Or some people doesn't want to eat. कई लोगों को खाना खाने का मन नहीं होता. Parents even though big, बड़े बड़े जो मतलब माँ बाप भी होते हैं, they are feeding their child. वो हाथ से कहते बेटा ले ले. You make your child lazy. बच्चे को जानबूझ के हम आलसी बनाते That's हैं. why here the Bible says. इसलिए बाइबल क्या बताती है? Verse 14, 15, Proverbs chapter 26. नीति वचन 26 के 14, 15 में The last, lazy people, कि आलसी व्यक्ति even their plate to pick their hand, उनके लिए अपनी प्लेट से खाना उठा even के to put in their mouth, मुंह में डालना so lazy. बहुत मुश्किल होता है. Then how we will live? तो कैसे हम जिएंगे? In different way, many people are lazy. अलग अलग तरीके से लोग आलसी होते हैं. So because of the laziness, और आलसीपन की वजह से we have a problem. हमारे जीवन में प्रॉब्लम. Because of your laziness, आलस की वजह से other person have problem. सामने वाले को भी परेशानी होती है, They need to walk. क्योंकि उसको ज्यादा They काम need करना to go पड़ता है. and pick your plate in your bed. वो अपनी भी प्लेट उठाएगा और आपका भी प्लेट उठाएगा. They need to go and pick your plate in your chair. आपकी कुर्सी से आपकी प्लेट वो भी उठाएगा. They need to go and pick your plate in your tea cup in your office. आपका चाय का कप या जो भी आपका ऑफिस में उठाएगा उसको भी रखना पड़ेगा. So how many people in your house like that? Your wife, your children, drinking, eating, and keep the place there. There is a place to keep everyone. The place that I brought up. पास्टर कह रही जहाँ पर मैं बड़ी हुई हूँ, My house. पास्टर के घर में After we eat, खाना खाने के बाद big or small, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, we wash our own plate. अपनी अपनी प्लेट खुद धोते हैं. And we keep in the place that my और father told me to keep. और जहाँ पर प्लेट रखनी होती है धोकर वहाँ रखते हैं. So my mother had no way and no work to wash our plate. No extra work. तो पास्टर कह रही मेरी मम्मी के पास एक्स्ट्रा काम नहीं होता है कि वो अपनी प्लेट भी धोएगी और हमारी भी धोएगी. So whatever we eat, drink, tea or cup, we wash ourselves, we put the same place. तो पास्टर कह रही हमारे वहाँ पर जो खाता है जो पीता है वो अपने बर्तन खुद ही धोता है. So that moment we done the work. उस समय वो काम हो गया. But here in Delhi, पर दिल्ली में after eating, खाने के बाद you put in the vessel full. तो जो क्या वो सिंक होता है ना, सिंक के अंदर बर्तन फुल कर देते हैं The whole day you see और पूरे दिन दिखते हैं वो. a plate full in that kitchen. तो सिंक के अंदर बर्तन जब फुल हो जाते हैं Then you also see, हम देखते हैं इतना प्लेट वॉश करना पड़ेगा. इतना प्लेट से काम 1 घंटा 30 minutes you take out and you waste. और फिर 1 घंटा हम सारे बर्तनों को धोने में लगता है. But everyone you eat, पर अगर हर कोई जो you खाता है, wash by hand, wash your hand. अगर हम जो खाते हैं हम खुद ही That time you wash your plate.
like that. तो इसलिए हमें किचन में 2-3 घंटे लग जाते हैं। We are not like that. पास्टर कह रही मैं ऐसे नहीं। After eating, you didn't see in the kitchen anything. पास्टर कह रही हमारे यहाँ खाने के बाद किचन में कुछ नहीं दिखता है, खाली होता है। Even this we brought up. पास्टर कह रही जहाँ हम बड़े हुए हैं, When we take bath, जब हम नहाते भी हैं, we never keep our clothes for tomorrow to wash, today to wash. कपड़े इकट्ठे करके भी नहीं रखते हैं कि आज इकट्ठे होके कल Still धोते हैं। today I am like that because I brought up like पास्टर that. कह रही मैं आज भी जो कपड़ा पहनती हूँ उसी समय नहाने के बाद साथ-साथ धोती Today हूँ। I wash this अगर dress. पास्टर ने आज ये कपड़े I went home, I take bath. पास्टर ने घर जाएगी, Then I wash it. हाथों हाथ धो देगी। Then after the taking bath, there is no work. तो नहाने के बाद वो कपड़े दिखाई ही नहीं कि धुल चुके हो, But you are keeping one week. पर हम उसको 1 हफ्ते तक मशीन में इकट्ठे करते हैं, Then full. फिर फुल हो जाती है Even by seeing that, और दिखती भी है। you become lazy. फिर देख के आए हैं धोने Oh, पड़ेंगे। कितना कपड़ा धोना पड़ेगा. Then we say come for service. फिर पास्टर कहते सर्विस के लिए आ Come जाओ, for fellowship. फेलोशिप के लिए आ जाओ, Come for prayer. प्रेयर के लिए आ जाओ। नहीं मैं कपड़ा धोना पड़ेगा. You see, that is why God said that don't be lazy. इसलिए परमेश्वर कहता है आलसी मत बनो। Here the Bible says, don't you see, lie a door on the hanging, and lazy man turn back to fall, and his bed lazy people are too lazy to lift up their food from their plate and their mouth. तो यहाँ पे लिखा है 14-15 में, जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। Some people will say it's difficult to put in their mouth roti. कई लोगों को रोटी अपने मुंह में डालने में This प्रॉब्लम। is the Bible said. It's not me. पास्टर कह रही मैं नहीं कह रही, बाइबल में लिखा है। Mommy, मेरे को खाना खिला दो. क्या है आप husband wife? Husband बोलेंगे wife को मेरे को खाना खिलाओ ना. खिलाएंगे. इतना lazy मैं तो पापा मरेगा. खाओ अपना लेके खाओ. मैं तो इसलिए घर पे अपना लेके खाओ मैं नहीं देंगे. So that is the things that see people are like that. There's a God saying this is a sin. It is a curse. तो परमेश्वर कहता है ये एक श्राप, एक पाप की तरह है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। God created. परमेश्वर ने बनाया है। In Genesis chapter 2. उत्पत्ति 2 में God created everything. परमेश्वर ने हर चीज बनाई। He created rice. उन्होंने चावल He बनाया, created plate. प्लेट He बनाया, created food. खाना बनाया। Now you duty to make it. अब हमें परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, बनाना हमने। Now you duty to make it eat. आपको सब्जी या गेहूं दे दिया, रोटी सब्जी आपने बनाना So है। when God created everything, जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया and He kept the man in the garden. और उन्होंने उस आदमी को अदन की बगिया में रख दिया। Why God keep in the garden Adam and Eve? परमेश्वर ने आदम और हवा को बाग में क्यों रखा? When we go to garden, जब हम किसी बाग में जाते we हैं, want to. I used to go to sometime garden पास्टर कहते हैं कि मैं पार्क में जाती हूँ to relax myself, अपने आप को आराम देने के or to लिए, refresh myself, अपने आप को ताजा or करने to के see लिए the beauty और सुंदरता and to worship with my heart with the Lord. और दिल में परमेश्वर की आराधना करनी। So sometimes I love to go to park. तो पास्टर कहते हैं कभी मुझे पार्क जाना अच्छा लगता I है, see the silence and then also beautiful, clean. Then I just worship the Lord by walking there. तो पास्टर कहते हैं मैं वहाँ चलती हूँ, फिरती हूँ और मैं परमेश्वर की आराधना करती हूँ। But God put the garden in the Adam. परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों अदन की बगिया में रखा? God tell them, परमेश्वर ने उनसे कहा be fruitful कि यहाँ पर फल लाओ and be taking care of this garden. और इस गार्डन की टेक केयर भी करो, Walk in this garden. मेहनत करो यहाँ पर, Clean in this इसको garden. साफ रखो And whatever I have given, और जो भी मैंने दिया है work, मेहनत करो, eat the fruit खाना भी खाओ and do it. और मेहनत You करो। are my workmanship. तुम मेरे काम करने वाले लोग हो। See, the Bible says, we are the workmanship of God. बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर की वर्कमैनशिप मतलब परमेश्वर के काम करने वाले We लोग are the हैं। partnership of God. परमेश्वर जैसे काम करता है हमें भी वैसा ही काम God करना है। didn't create you to be lazy and dull, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम आलस में पड़े रहें। but He created you to be a workmanship, सब परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे वो काम करते हैं हम भी काम करें, helper, मदद करें परमेश्वर की। and whatever He do, और जो भी परमेश्वर करता He है wants us to do same thing. परमेश्वर कहता है कि हम भी काम करें। God work hard. परमेश्वर मेहनत We करता see in है। the beginning Genesis chapter 1. हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में God, देखते हैं। created everything in the day by day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Only Sunday He take rest. परमेश्वर ने 6 दिनों के अंदर पूरी सृष्टि का निर्माण किया So He take rest in 7 days. और संडे मतलब कि रविवार के दिन 7वें दिन प्रभु ने आराम किया। So God also wants us to be like that. तो परमेश्वर भी ऐसे ही चाहते हैं कि हम भी काम करें। But many time people take rest
in 6 days and 7 days they work. लेकिन कई बार लोग ये करते हैं 6 दिन आराम करते हैं और 1 दिन काम करते हैं। And then also in the sense of they're saying that lazy people think that they are sometimes smarter than others. और 16वें वचन में लिखा है आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। These lazy people. जो आलसी लोग होते हैं, Everyone say lazy people. सब बोले आलसी लोग, They think that they're smart. वो सोचते मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। See, you see lazy people. अब आलसी लोगों को देखो, They think that they are smart. वो सोचते हैं मैं बहुत स्मार्ट हूँ, They think that they know everything, मुझे सब आता है, but they don't know पर nothing. उन्हें कुछ नहीं आता है। I see some men. पास्टर कहने के लिए कुछ Whatever you say, कुछ आदमियों को देखा, जो भी आप उन्हें बोलोगे नहीं करो। I know. अरे मुझे पता है, तुम चुप रहो। See, they are very smart. वो कहते हैं उन्हें बहुत सब कुछ पता है, And then you have nothing to say. और फिर आप कुछ बोल ही नहीं पाते। But you never see their work. पर आप उनका काम भी नहीं देखते हैं। And then also lazy people. और आलसी लोग, They think that they are so smart, they think that they are so intelligent. वो सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। You know, the active people, लेकिन जो एक्टिव लोग होते हैं, they have no time to think like that. उनके पास टाइम ही नहीं होता फालतू सोचने का। And then also this year, I wanted to tell you all, bring note and write down. So that you मैं will. कह रही कि इस साल मैं चाहती हूँ सब लोग एक नोटबुक लेकर आए और उसमें नोट्स ले। And last time you people used to write and पहले continue. यूथ के बच्चे लिख रहे थे, So you see, writing note is very very अभी भी लिख important. रहे हैं। So that you can check it out. So lazy person think that they are very smart, तो जो आलसी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं and other people that doesn't know anything. और बाकी लोग बेवकूफ हैं। So anything that you say, तो आप उन्हें जो भी समझाओ, हाँ ये मालूम है, मैं ही करेगा, वो करेगा, आप तो कुछ नहीं मालूम है, चुप रहो. So that is how the person who lazy, he think that the whole world is inside him. तो जो इंसान आलसी होता है वो सोचता है वो बुद्धिमान है और सारी दुनिया मेरे हिसाब से चलती है। But the people who are active, लेकिन जो लोग एक्टिव होते हैं they are humble. वो नम्र होते हैं। They have no time to think that they are smart, उनका टाइम ही नहीं है अपने आप को स्मार्ट समझने का। and they need to learn more. उनको सदा नहीं, हमें और They need to सीखना है, work more. हमें ज्यादा मेहनत करनी है। And what they doing is not enough. They want to work more और and वो more. सोचते जितना कर लिया ना भी बहुत नहीं, भी और काम करना है। But the lazy people, और आलसी व्यक्ति they just sit down. वो बैठता है, They act like smart. वो दिखाता है कि बुद्धिमान They है। act like they know everything. वो ऐसे दिखाता है मुझे सब पता है। If you also like that, अगर हम भी ऐसे हैं, change. हमें बदलने की If जरूरत your है। family is like that, अगर हमारे परिवार में लोग ऐसे change हैं, the person. तो उस व्यक्ति को भी बदलने की जरूरत है। So lazy people that difficult to eat themselves, clean themselves, wash themselves. तो जो आलसी व्यक्ति होता है उसे खुद सफाई करने में, खुद काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। And then also lazy person is that they think that they're very smart, और आलसी व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, but they doesn't know nothing, पर वो नहीं जानते हैं। and they are just a lazy only. वो सिर्फ आलसीपना ही। And who really have a good sense? So they think that they know everything. Let us also turn to Proverbs chapter 18. नीति वचन 18 खोलेंगे सब। Proverbs chapter 18 verse 9. 18 का Proverbs chapter 18 verse 9. Whoever is lazy regarding his work also a brother to the master of जो destruction. काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। What is that? The person who is lazy जो व्यक्ति आलसी होता है is the brother. वो भाई किसका है? Destruction. बिगाड़ने वाले का। Is the sister. बहन भी है, Lazy sister. एक आलसी बहन, You have another sister. आपकी दूसरी बहन है, That is a destruction. वो बिगाड़ने वाली है। So now here the Bible says that the person who is regarding laziness is in his work is the brother to the master of destruction. कि जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। They are the real brother, वो उनके भाई the होते हैं, lazy person आलसी who व्यक्ति lazy to work. जो काम करने में आलस करता है। Be careful. तो ध्यान रखिए, Your destruction are coming. आपका विनाश जल्दी आ रहा You है। are going to be destroyed आप नष्ट हो जाएंगे because of laziness. आलस की वजह से। You are going to be poor आप गरीब हो जाएंगे because of laziness. आलस की वजह से। You are going to be hunger आप भूखे रह because of जाएंगे laziness. आलस की You वजह are going to be still से। आपकी चोरी हो सकती है because of laziness. कि आप आलसी हैं। People are lazy. जो लोग आलसी होते हैं, They will steal. जो आलसी लोग होते हैं वो चोरी भी करते हैं। People who are lazy, जो लोग आलसी होते हैं they want to eat good food. उन्हें खाना तो बढ़िया चाहिए। Whatever the person cook, जो सामने वाला खाना बनाएगा ना they will complain. वो कंप्लेन But they are very lazy. क्योंकि वो आलसी ज्यादा। But they want to eat good वो food. खाना तो उन्हें बढ़िया चाहिए। Some people doesn't want to
eat vegetable. कई लोगों को सब्जी खाने का मन But they है, are lazy to earn, पर उन्हें कमाने में मुश्किल होता lazy है, to work. आलस होता But है, they want the best food. पर वो सोचते हैं खाना बढ़िया चाहिए, They want the best dress. अच्छे कपड़े चाहिए, They want the best place. अच्छी जगह चाहिए, They want to go to best place. अच्छी जगह पर They जाना want है, to travel. ट्रैवल भी करना है। These are lazy people. आलसी लोग होते हैं, They want the best thing, उन्हें सब कुछ तो अच्छा ही चाहिए, but they're lazy to work. पर आलस के चक्कर में कुछ So करते the नहीं हैं। end is तो destruction. उनका अंत विनाश होता है, They, because they want a best food, क्योंकि उन्हें अच्छा तो चाहिए, so they will do shortcut. तो वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, Without working, मेहनत नहीं करते, now they started corruption. वो भ्रष्टाचार करते हैं, Because they want to live a luxurious life. क्योंकि वो सोचते हैं हमें बढ़िया लाइफ जीनी है। So in that they're lazy to work. तो वो आलस होता They है, will cheat others. वो दूसरों को धोखा देते They हैं, will eat other money. दूसरों का पैसा खाते They हैं, will take other position. दूसरों की जगह ले लेते They हैं, will take other job. दूसरों की नौकरी They ले will लेते हैं, take other business. दूसरों का व्यापार छीनते हैं And they will not work. और वो मेहनत नहीं करते हैं। These are the lazy people. ये आलसी लोगों So की the पहचान है। end, तो उनका अंत क्या होता है? without too late, ज्यादा समय ना होते हुए they will be destructive. आप देखोगे कि वो खराब हो So जाएंगे, without they are lazy to work, क्योंकि वो लोग आलसी होते हैं, but they want the best thing. पर चाहिए सब कुछ बढ़िया, So they will go and steal gold. तो चोरी भी करते हैं सोने की, They will go and steal diamond. हीरा चोरी करते हैं, They will go and steal other people's house. दूसरे घरों में जाके चोरियां करते हैं And they sell. और फिर इसको बेचते हैं, They are lazy. क्योंकि वो आलसी है खुद कमाने के। What is the destruction? विनाश क्या है? One day एक दिन they were arrested पुलिस उन्हें पकड़ लेगी and they were put into jail. और जेल में चले That जाएंगे, is why this is the meaning. और यही इसका अर्थ है। So lazy person who is lazy to work, the brother to the destruction. तो यहाँ पर लिखा है कि जो काम में आलस करता है वो बिगाड़ने वाले का भाई है। So destruction means the calamity is coming. तो बिगड़ना मतलब क्या है कि अंत होने वाला है उसका, Danger is coming. वहाँ पे खतरा है। So lazy is that brother for danger. तो यहाँ पर लिखा है कि जो काम में आलस करता है बिगाड़ने वाले का भाई है। So don't be lazy. तो हमें आलस नहीं करना चाहिए, God didn't create it. परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बनाया। So the lazy person and the lazy to work, the brother to the master of destruction. So be careful the work and the life that you live. तो जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए। When you're lazy, जब हम आलस करते हैं calamity is coming. तो मतलब हमारे जीवन में कुछ खराब हो सकता है, Destruction is coming. विनाश हो सकता है, Death is coming. मृत्यु हो सकती है, And so many things are coming. बहुत सारी चीजें हो But सकती when हैं। you work, लेकिन जब हम मेहनत करते the हैं blessing is coming. तो आशीष भी आता है। Let us turn to Proverbs 10. खोलते हैं नीति वचन 10 Proverbs 10, 26, 27. 10 का 26-27। Proverbs 10, 26, 27. What the Bible says. Proverbs 10, chapter 26, 27. 777 पेज नंबर 770। Lazy people irritate their employ, lie the bind to the teeth and smoke, and in the eye is fear of the Lord lengthened and life, and the years of the wicked are cut short. तो यहाँ पे लिखा है नीति वचन 10 के 26-27 में, जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। Amen. So here my English Bible says lazy people कि आलसी लोग irritate their employee also. जिसने उसको नौकरी पर रखा है ना, वो भी इरिटेट होता है उसको देख So lazy boss अगर कोई आपका जो बॉस है who is lazy, जो आलसी है, they will always irritate the employer. जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको परेशान करता रहेगा। Lazy family, अगर परिवार में कोई आलसी lazy है, father, अगर आलसी पिता है, lazy mother, आलसी मम्मी है, who will always irritate to their wife, to their children, to their husband. तो कुछ लोग अपने पति पत्नी या बच्चों को हमेशा इरिटेट ही करते रहते हैं। That is the Bible talk about here. बाइबल यहाँ ये बता रही So है, we're not lazy people. आलसी लोग They will irritate their employee वो अपने आसपास के लोगों को सबको इरिटेट करते हैं, because they don't want to work. क्योंकि वो मेहनत नहीं करना They चाहते, will always complain, वो हमेशा शिकायतें करते हैं, बोलते रहते हैं, complain करते रहते हैं. So they will make you irritate. वो आपको इरिटेट कर देंगे। But the person who work hard, लेकिन जो इंसान मेहनत करता है, no time to see what you are doing. उसके पास टाइम ही नहीं है आपको देखने के लिए कि आप कर क्या रहे हो, So they have nothing to irritate you. तो आपको इरिटेट कर ही नहीं They सकते। are focused. उनका फोकस रहता है। See, when you do something focused, जब आप कुछ फोकस रखते हो, you don't know what the other person आपको is नहीं doing. पता दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। But when you are lazy and sitting, जब आलसी होते हो, खाली होते हो, you will irritate. आप देखोगे दूसरों के जीवन If your में husband is lazy, अगर आपका पति आलसी है, they will irritating you. वो आपको जरूर परेशान They करेगा, will always complain, कंप्लेन talking करेगा, here and there. इधर-उधर की बातें करेगा। If your wife is अगर आपकी lazy, पत्नी they आलसी will है, irritating वो you. आपको इरिटेट करेगी, You work. आपकी काम There's sometimes the wife say, "Oh, my husband
always irritating me. इसलिए कई बार औरतें कहती हैं कि मेरा पति मुझे इरिटेट करता Or है। sometimes the man said, my wife is always और कई irritating पति me. कहते हैं मेरी बीवी मुझे बहुत इरिटेट करती Or you children, lazy children, है। और कई बच्चे ही आलसी होते हैं, they were always irritating their parents. वो मम्मी पापा को इरिटेट करते रहते हैं। Mommy, खाना, पराठा बनाओ, रोटी बनाओ, है ना रे? और बनाएंगे, क्या नहीं खाएंगे? See, they are irritating. तो वो इरिटेट करते हैं। Maybe you, I also. Sometimes मैं मम्मी पापा का साथ रहता था, मैं कुछ चीज ना बनाने को पसंद नहीं था, तो बनाएंगे फिर इरिटेटिंग करता था। मम्मी पसंद नहीं है, इस तरफ से बनाओ। बनाएंगे भी हम, खाएंगे, रोते भी है क्योंकि हम बोल लेजी था। And then but you are ready to irritate the person. तो हम सामने वाले को इरिटेट करते हैं। I see sometimes कई बार पास करते when हैं, the person is so irritated, जब कोई इंसान बहुत इरिटेट हो जाता है, they will pick up their plate, वो अपनी प्लेट उठाएंगे, throw the plate. प्लेट ही फेंक देते हैं। देखा है इसे? One day Guruji told me. Guruji was telling me when he was in ashram. तो जो साधु जी वो बता रहे थे, वो आश्रम में थे, Or the person who is going to cook, used to cook. जो खाना बनाता था, So he used to talk so much. वो बहुत ज्यादा बात करता था। And one day he bring the plate, एक दिन वो प्लेट लेकर आया, and here is the like in the plate. तो प्लेट में थोड़े बाल भी आए। So he was putting the in the plate like that. He was telling the story. So see, the lazy people, they were irritating. तो आलसी लोग बहुत इरिटेटिंग होते हैं। So when the person you are irritating, so the person were irritated, they were angry. What they are doing, they will stop. तो इसलिए उन्हें गुस्सा आ जाएगा और वो काम करना ही छोड़ देता है। So that is the Bible talk about here. तो बाइबल यही बता रही है। Proverbs chapter 10 verse 26. That it is not lazy people irritating their employee. So employee may be so many things. So you might be the mother, you are a lazy, then you will irritate your children, you will be irritate your husband. हो सकता है कि अगर आप एक औरत है, वो आलसी है, तो अपने बच्चों को, अपने पति को इरिटेट कर सकते हैं। Or you are working in the office. या आप ऑफिस में काम कर You रहे हैं। are working in any kinds of job. कहीं पर भी आप नौकरी कर रहे There हैं, is a head. कोई हेड है, That person is lazy. वो व्यक्ति ही Who आलसी is है, sitting in the chair. जो चेयर पे बैठा हुआ है। Whatever you are doing, जो आप बोलते हो, they will be irritated. जो भी आप करते हो, वो इरिटेट होता है। And but they will never focus. वो खुद फोकस नहीं रहता, They will never do. वो कभी नहीं देख, खुद नहीं करता। So there is the Bible say that lazy people will always irritating. तो बाइबल इसलिए बताती है आलसी व्यक्ति दूसरों को इरिटेट करता है। But if you will work hard, लेकिन अगर आप मेहनत करते there हैं, is no time to irritate other तो person टाइम ही नहीं है दूसरे को इरिटेट करने का, because you are focused on कि that. आप किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। So God said this is wrong. परमेश्वर कहता है गलत है, Don't do that. ऐसा ना करें, You need to stop. हमें उस काम को रोकना चाहिए। And then also the Bible says that in the verse 27, lazy people, that in their eyes fear the Lord, lengthened life, but the years of their wicked are shortcut. 27 यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। See, the lazy people, their life is shortcut. जो आलसी लोग होते हैं उनका जीवन थोड़ा ही होता है। How? कैसे? If you're lazy, अगर आप आलसी हैं, you maybe kill somebody, आप किसी को मारेंगे। then you also kill. अगर आप किसी का गलत करते हैं पैसे के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आपके साथ भी गलत होगा। See, you want money, आपको पैसा चाहिए, you go ahead and kill आपने somebody. किसी को जाके खून कर दिया, So your life is shortcut. आपका जीवन भी थोड़ा ही होगा। Don't think that whatever you do, you will be able to live. ये ना सोचिए कि गलत करने के बावजूद आपका जीवन लंबा ही रहेगा। Whatever you do, जो भी आप करेंगे, there is a consequence. उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। So today many people lazy to work. आज बहुत लोग आलसी है, काम That's करते why they हैं are sitting. और इसलिए वो बैठे रहते हैं। If you're moving forward, अगर आप आगे बढ़ेंगे, your family are आपका progressing, परिवार बढ़ेगा, you get a good job, अच्छी नौकरी you मिलेगी, get a good money. अच्छा पैसा मिलेगा, They are lazy to do. तो उनको काम They are करने lazy to work. मेहनत करने They go to the Kala Jadoo. वो काला जादू करने They में जाते put हैं। you. वो आपको They torture you. They get sick. They go torment. तो लोग आपके ऊपर काला जादू करेंगे, जो आलसी लोग होंगे आपको परेशान करेंगे ताकि आपसे उनको फायदा हो। Because they have no work. क्योंकि टाइम कुछ काम तो They are नहीं, lazy. आलसी है। So they want to do other person moving forward, working hard. They don't want to see this तो जो thing. लोग आलसी है वो खुद काम नहीं करते, लेकिन जो लोग मेहनत करके काम कर रहे हैं उनके जीवन में काला जादू करवाते हैं ताकि वो भी रुक जाए। They have no other work, so they need to go to Satan. तो उनका टाइम तो फालतू का है, तो सोचते हैं शैतान की काम ही कर रहे So हैं। because of that, तो इसकी वजह से the lazy person, make problems suffer to other और person. इसलिए आलसी व्यक्ति दूसरों के जीवन में भी प्रॉब्लम्स लाता है। So their life are made shortcut. तो उनका जीवन They think that they will long life, वो सोचते हैं कि उनका जीवन but लंबा lazy होगा, person will never पर have a आलसी long व्यक्ति life. लंबा जीवन नहीं रखता है। In Ezekiel, book of Ezekiel, यहेजकेल की किताब में
Ezekiel is the Old Testament, after Prabhupada, go ahead. Ezekiel chapter 16 verse 49. Why God, this is not the Sodom and Gomorrah book. Why God is destroying the Sodom and Gomorrah? क्यों परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को खत्म कर दिया? Because of laziness. उनके आलस की वजह से। The Bible says in Ezekiel chapter 16 verse 49, Sodomite sins were pride, glory, and the laziness with their poor and needy suffer outside her door. तो यहाँ पर लिखा है यहेजकेल की किताब में 16 के 49 में, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। See, English Bible say, Hindi Bible I didn't see, but English Bible says Sodomite were pride. Their sins are pride, their sins are laziness, and the poor people they never respect. तो सदोम की गलती क्या थी? सदोम के लोगों की गलती थी, वो घमंड करते थे, आलसी थे, और जो लोग दीन दरिद्र थे उनको ध्यान नहीं रखते थे। They are lazy to work. वो लोग आलस करते थे काम करने में। So the lazy people, the what is that? You are open the door for Satan. तो आलसी लोग जो होते हैं वो शैतान के लिए रास्ता खोल देते हैं। Why God destroyed the Sodom? क्यों परमेश्वर ने सदोम को खत्म कर दिया? One thing, Nineveh. अगर आप नींबे के लोगों को देखें, Jonah went to Nineveh. योना नींबे गया, He preached. उसने प्रचार किया, They repent. उन्होंने पश्चाताप But किया। Sodom and Gomorrah, सदोम और अमोरा में there are so many prophets come. वहाँ पर बहुत भविष्यवक्ता गए, They didn't repent. तो उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। And the sins that they have, और जो पाप उनके थे, lazy, आलस के, pride, घमंड, but they want enjoyment. पर वो सोचते हमें आनंद उठाना है। Because of laziness, आलस की they वजह से didn't work, वो मेहनत नहीं but they किया, are so much pride. बहुत ज़्यादा घमंड और किया। हम लोग का देश इससे हो, हम लोग इससे हो, हम लोग बड़ा लोग है, और हम like rich लोग है, so they make with pride. तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड हुआ करता था। And they do so many sexual immorality because they are lazy and their mind are like that. और उनका दिमाग ऐसा ही था, इसलिए वो लोग बहुत व्यभिचार भी करते थे। They think and they think about so many sexual immorality. क्यों खाली बैठते थे, मेहनत नहीं करते, उनका दिमाग हमेशा व्यभिचार में रहता था। See, when you're lazy, जब आलसी होंगे, you will never think here and there. तो You will never think here and आप there. इधर उधर नहीं सोचोगे। But when you are lazy, पर जब आलसी होगे, when you work hard, जब आप मेहनत करोगे, you will not think here and तो there. आप इधर उधर नहीं सोचोगे। But when you're lazy, लेकिन जब आलसी होगे, you will think that person, तो जो you will think that person, उस लड़की के बारे में, or उस लड़की के बारे you में, will call that person. मैं इससे बात ही कर लेता हूँ, चलो खाली बैठो। You are just talking nonsense, आप फालतू की बातें आधा घंटा करते रहोगे, or you're complaining, या शिकायतें करोगे, gossiping. चुगलियां करोगे। So lazy people work like that. आलसी लोगों का काम यही होता है। See, if you work hard, अगर आप मेहनत करो, you have no time to तो talk. टाइम ही नहीं है चुगली करने का। Because you have so many things to काम do. इतना सारा है, But the lazy person, लेकिन आलसी व्यक्ति he will sit. आओ बैठेगा। He will talk. Even the lazy people disturbing us. जो आलसी व्यक्ति होता है दूसरों को भी परेशान करता है। Sometimes people, when the people call so much and then I switch off the phone. कई बार तो पास्टर को भी कई लोग बार-बार फोन करते हैं, पास्टर स्विच ऑफ ही कर देते हैं। हम partner करें तो phone आते हैं. और when sometimes we are eating also phone आते हैं. कई बार खाना खाते हैं तो फोन। Sometimes I irritate, or sometimes I'm preparing a message. कई बार पास्टर प्रचार के लिए तैयारी कर रही है, Call will come. फोन आएगा। Sometimes I'm just preparing in internet. पास्टर ऐसे गूगल से कॉल आते हैं तो मेरा टॉपिक को गायब होता है, तो मेरा गुस्सा होता है, तो मैं तो और ढूंढना पड़ता है. So that is the things that see lazy people, they will just disturb the others, and lazy people they will always what space for the people, time for the people. तो जो आलसी व्यक्ति होता है उसके पास दूसरों के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको दूसरों के लिए इतना टाइम नहीं होता। That's what the Bible says. When God destroys Sodom and तो Gomorrah, बाइबल बताती है क्यों परमेश्वर ने सदोम के शहर को खत्म किया, because the people were so lazy. क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत आलसी थे, They are pride. घमंड था They उनमें, think that they are smart. वो सोचते थे कि हम बहुत स्मार्ट They हैं, think that they are educated. वो सोचते थे बहुत पढ़े लिखे They हैं, think that they do so work hard, वो सोचते थे कि हम बहुत मेहनत तो करते हैं but they didn't do पर नहीं nothing. करते थे। That is why God destroyed the Sodom and इसीलिए Gomorrah. परमेश्वर ने सदोम को खत्म कर दिया। Amen. आमीन। And then also let us turn again to Proverbs chapter 19. नीति वचन 19, Proverbs chapter 19 verse 24. Proverbs chapter 19 verse 24. A lazy man buried their hands in the bowl, and not so much bring it his mouth again. 19 का 24, 788 पेज नंबर नीति वचन 19 का 24।
आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। Amen. See, lazy person. आलसी व्यक्ति What they do? क्या करते हैं वो? Their hand उनका हाथ always put in their pocket. जेब में होता है, They don't want to work. मेहनत नहीं करती, They don't want to bring out their hand. हाथ बाहर निकालने का मन नहीं करता। That is the meaning of Bible. इसका मतलब है ये, Lazy people always put in their hand. आलसी व्यक्ति हमेशा अपना हाथ अपनी जेब में रखता है, Gentleman साहब की पॉकेट में डाल के ऐसे घुमाता है ना, गली गली में और शॉप में, मार्केट में. But they don't want to bring out their hand. पर अपने हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहता। That is a lazy person. वही आलसी व्यक्ति होता है। But the person who is active, लेकिन जो इंसान एक्टिव रहता है, they will never, their hands will never be empty. उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। कुछ करते रहते हैं. But lazy people, पर आलसी व्यक्ति, their hands, और उनके हाथ, they don't want to work, so they put in their pocket. वो काम नहीं करना था इसलिए जेब में हाथ रखते हैं, And they will inquire people what they're doing. और दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, They will visiting to house. दूसरे घर जाएंगे, क्या हो रहा है? और कोई ना आया, खाना पिलाया, चाय पिलाया, आज तो मजा आया. But they don't want to work. पर वो लोग खुद मेहनत नहीं करना चाहते। But be careful. One day people will stop giving. पर आप देखिए आलसी लोगों को एक दिन लोग देना बंद कर देते हैं, One day people will stop respecting. एक दिन लोग इज्जत भी करनी छोड़ देते हैं। एक टाइम तो आप आया, आपका कैरेक्टर मालूम नहीं था, आप आया अच्छा से खिलाएंगे, 2-3 बार आएंगे, मालूम होगा राशि मत जा मेरे घर में, जितना मत कमी भी काम कर रहे हैं. ये आलसी इंसान है, मेरे घर में आके लाते, चाय पिलाते. So that is the thing. Lazy people always put their hands in their, in their pocket. तो आलसी लोगों के हाथ हमेशा They will roam, or they will roam in the park, या पार्क में घूमते हैं, or they will come back. Mommy, चाय. और खाना पिलाओ. Then day by day become poor. तो धीरे धीरे वो व्यक्ति गरीब हो जाता है। Don't think that you will be always like that. ये ना सोचिए कि हमेशा ही ऐसे रहेंगे। There will be a time एक टाइम आता है people will not giving food. जब लोगों को खाना देना ही बंद कर People will not giving chai. लोगों को चाय देनी बंद कर And if you are not prepared अगर now, आप तैयार आज नहीं हुए, where do you get chai? कहाँ से चाय मिलेगी, Where do you get food? कहाँ से खाना मिलेगा। So the lazy तो people आलसी व्यक्ति always put their hands in their pocket. हमेशा उनके हाथ उनकी जेबों में रहते हैं। If you like that, अगर आप भी ऐसे change your life. तो हम बदले अपने आप। Amen. And then also Proverbs chapter 21. नीति वचन 21, Proverbs chapter 21 verse 25. The desire of the lazy man kill for his hand, refuse to labor. नीति वचन 21 का 25, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। See, let the lazy people, the desire kill himself. They are kill their desire, and for their hand refuse to labor. They are refuse to work. वो काम करने के लिए उनका मन नहीं होता है, They refuse. वो मना कर देते हैं। You will say, "Oh, here is a job." आप बोलोगे अरे ये नौकरी अच्छी मिल रही है, जाओ ना करो। Lazy people. आलसी लोग, "Ay, मेरा work नहीं है." अरे मेरे बस की नहीं। They are lazy. आलसी होते हैं, They want big things, वो कहते नहीं बड़ी नौकरी चाहिए एक ही बार, but they are lazy to work. कि उन्हें मेहनत करने से मना होता है। So lazy people, they are refuse the work. तो काम करने से ही That is the Bible says they are refuse their labor. तो वो अपने काम करने मना कर देते हैं। They will say, "Come and work." कोई कहेगा They आओ will say, काम "Come and cook." करो, आओ खाना बनाओ, They will say, "Come and do the job." आओ मेहनत करो, नौकरी करो। You think that you will get better job. आप बोलोगे नहीं इससे अच्छी नौकरी मिलेगी, You will think that you will do next time. नहीं अगले साल करूंगा, But that opportunity will never लेकिन वो come. अवसर, वो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, Then will वो go. चली जाएगी। You are lazy that day. You don't want to work. उस दिन तो आपने आलसी के चक्कर में छोड़ दिया, But time fast. पर जब समय आएगा, Time is running. टाइम जल्दी निकल Years जाएगा, is running. साल निकल जाएंगे। I see in life. पास्टर ने अपने जीवन में देखा है, Before I was really active. पहले I don't want sitting like that. Now also. But now when I see the age is growing. पास्टर कह रहे थे पहले मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, आज मन तो इतना है करने में, लेकिन बहुत चीज में कर नहीं पाया, पहले से करता था. So there will be a time for everything. तो हर एक चीज का समय होता है, So don't be lazy. तो इसलिए मैं आलसी नहीं होना When है। you need to do, जब हमें करना है do it. तो करें। There will be time that you will not do एक again. समय आएगा जब नहीं There will करेंगे, be time that you will not get एक opportunity समय आएगा again. जब हमें वैसा अवसर
अवसर There नहीं will मिलेगा। not, there will be time that you cannot go again. एक समय आएगा जब जा ही नहीं There will be time that you cannot meet again. एक समय आएगा जब मिल नहीं पाएंगे। So whenever the opportunity comes, जब हमारे पास अवसर है don't be refused. तो उस समय मना नहीं करना है। That time that you want to work, तो जब हमें करना है, that time people will not take you. हो सकता है जब हमारा करने का मन हो तो सामने वाला हमें ले ही ना, Because क्योंकि now is the time to work. पर अभी जो टाइम है वो करने का You are है। lazy to do. अभी तो हमारा Then you do in the future. लेकिन हम सोच रहे भविष्य में करेंगे People will not hiring तो you. लोग हमें क्यों लेंगे, People will not take you. लोग हमें क्यों ना Because you are old, क्योंकि हम बुढ़े हो जाएंगे तब तक you can't able to do. तो मेहनत नहीं कर Now पाएंगे। you become old. अभी अगर हम Then your brain also not function जब well. हम बुढ़े हो जाते हैं, The things that you are doing, जो चीजें हम करने में होते हैं years by years, साल भर साल, children are growing. आप देखिए बच्चे बड़े होते हैं, All people बड़े लोग grow, day by day. Not what is that capability, knowledge, wisdom day by day reducing. आप ये देखिए जो लोग बड़े होते हैं वो धीरे धीरे बुढ़े होते जाते हैं और उनकी जो करने की क्षमता होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। So now, when you are strong now, तो अभी जब आप तंदुरुस्त when हैं, you can do something तो now, आप आज कुछ कर सकते हैं, don't be lazy. तो आज हमें आज Do it. कर लेना है, Then that fruit you will get when you become old. ताकि आने वाले समय में उसके फल हम खाएंगे। That fruit that you will get when you can't able to walk. जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो उसके आज के फल आप तब खाएंगे। That is why government has a plan. आप इसलिए देखिए सरकार के भी कुछ प्लान होते हैं। Government has when they are young, सरकार भी ऐसा बताती है जब आप जवान होते हैं, when they work, जब मेहनत that करते when हैं they got pension, और जब पैसा इकट्ठा when होता है they become old, और जब बूढ़े हो जाते हैं then they got a तो pension. उनको पेंशन मिलता है। But without doing the job, लेकिन जब आपने जवानी में काम ही नहीं किया they didn't get तो pension. पेंशन कहाँ से मिलेगी? When you are working, जब आप मेहनत करते हैं government is saving your money तो सरकार आपका पैसा सैलरी से काट के इकट्ठा करती है आपके because मुनाफे you के are लिए। working. क्योंकि आज आप मेहनत कर रहे हैं। So when you are all retired, तो जब आप 60 साल के रिटायर हो जाते हैं government give back the pension. तो सरकार जब की सैलरी हर महीने काटती है उसको इकट्ठा करके That रखती is है। not giving the freely. पेंशन किसी को फ्री में मुफ्त में नहीं मिलती है। 30 years you are working, अगर आपने 30 साल काम 40 किया years you are या working. 40 साल काम किया, After retire, रिटायरमेंट के बाद you get the pension आपको उसी के समय के अनुसार ही आपको because पेंशन of your मिलेगा। labor. आपकी मेहनत का ही। Same thing in our life. ऐसे ही हमारे जीवन में। Now when you are strong, आज अगर आप when you can able to आप do, जवान हैं, आप मेहनत when you are young, आप जवान हैं do it तो now. आज ही कर लें So that in the old age, ताकि आने बुढ़ापे के समय में you have full to eat. तो आज हम इकट्ठा कर लें ताकि तब आप खा पाए, You have full to take rest. आप आराम भी कर पाए। But if you are not labor now, लेकिन अगर आज जवानी में मेहनत if you are not storing now, आज आपने नहीं if you जोड़ा, are not making for a future आज now, भविष्य के लिए नहीं जोड़ा, when you become old, जब बूढ़े हो जाएंगे you will nothing to तो eat. क्या खाएंगे? You become poor. आप गरीब हो जाएंगे। So that is the Bible talk तो about. यही बाइबल हमें बता रही है। So lazy people are refuse to work. तो आलसी लोग क्या करते हैं? काम करने से ही They will say, "Oh, कल करेगा, आज नहीं कल करेंगे। next महीना करेगा, next साल करेगा." So you are doing the postpone, and your time are going, your strengths are going, your knowledge are going, your power are going, your wisdom are going, and when the time comes to work, nobody will not give you work. और इसलिए जब आज आपको अवसर मिल रहा है तो हम आज की चीज कल की चीज परसों और आगे खिसकाते रहते हैं और जब समय ही निकल जाता है तब हमें कोई नौकरी नहीं So देता। the Bible says, "Don't refuse the work." तो बाइबल इसलिए कहती है अगर आज आपको अवसर मिल रहा है उस अवसर को इनकार ना करें। Let us turn to Proverbs 22 verse 13. नीति वचन 22 का 30। Proverbs 22 verse 13. The lazy person claims that there is a lion outside. If I go outside, I might be killed. 22 का 13। नीति वचन 22 का 13 आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच में घात किया जाऊंगा। There is a lazy person. आलसी व्यक्ति ऐसा ही होता है। How? कैसे? Lazy people will say, आलसी लोग कहेंगे "Go for work." कोई आपसे कहेगा जाओ काम करो, Then they will say, "No, मम्मी मैं आज नहीं जाएगा, क्योंकि उधर ना मेरा दुश्मन है." That is the Bible talk about. ये बाइबल में। So lazy people will blame others. तो जो आलसी लोग होते हैं दूसरों पे दोष लगाते हैं। If I go out, अगर मैं भाग गई ना, lion will kill me. वो लोग मेरे बारे में उल्टा बोलेंगे, But lion will not kill. पर वो लोग नहीं बोलेंगे। But they are lazy. पर हम आलसी हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं। Sometimes when you're lazy, कई बार हम आलसी होते हैं, आज दिन तो नहीं जाएगा, वो इंसान आएंगे। But inside is you're lazy to go. पर आलस के चक्कर में ना गलती हमारी है कि हम ही नहीं जाना चाहते। Today, many people not coming to church. आज कई लोग चर्च नहीं आते। Why? क्यों? They think that they also lazy. क्योंकि वो आलसी होते हैं। Because of cold and lazy. ठंड की वजह से आलसी होते Then हैं। they, what they will blame? तो क्या कहेंगे? I call. पास्टर पूछेंगे, Sister, brother, why you are not coming? "अरे, चर्च क्यों नहीं आए?"
रंग रबरा बजरंग ओ बजरंग वाला लोग ना हम लोग को रुक रहा है, सच मत जाओ, हम लोग को मारेंगे। नहीं बताता, आपका घर नहीं आता, but because of your lazy you blame for that। लेकिन हम आलसी होते हैं, इसे दूसरे पे दोष लगाते हैं। ओ persecution आएगा, अरे कोई कुछ कह देगा। persecution may be very far from your village। हो सकता है सताव आपके गांव से बहुत दूर हो। persecution is not in Delhi। सताव दिल्ली में तो होगा ही नहीं, ये पास नहीं आएगा, पास में नहीं आता। but you say oh यूपी में शरीर चास तोड़ रहे हो, you are sitting in Delhi डर रहा है यूपी के लिए, because you are lazy। क्योंकि हम आलसी होते हैं। और people say oh what is a छत्तीसगढ़ पास लोग का रेस कर दिया, सब लोग मेरे को बता रहा है छत्तीसगढ़ ये ना छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़। मेरा लगा सारे लोग बता रहे थे मनु में पास लोग का रेस कर दिया, और क्या है चर्च में फ्लैग डाल दिया हिंदू का, हम तो चर्च नहीं जाएगा। मैंने बताया था दिल्ली में आए क्या, आप तो दिल्ली में बैठे हैं। This is a lazy। तो ये आलस है। Lazy people are like that। ऐसे ही होते हैं। They will say, "Oh, if I go out, I want to kill." मैं बाहर गया ना तो कुछ मेरे पे This is the meaning of that। यही इसका अर्थ है। Lazy people। आलसी। ओ मैं जाएंगे तो कला जादू करेगा, ओ मैं उधर जाएंगे तो कला जादू, ये कला जादू नहीं करता, आप lazy था ऊपर जाने के लिए। If you lazy to go to other house, दूसरे घर जाने में अगर आप हम blame करेंगे, मालूम है उनका घर ना कला जादू करते हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपका अंदर है लासी, आलसी, आपका अंदर है आलसी था, जाने का मन नहीं था तो यू ब्लेम। उनका घर है ना लायन है, लायन के क्या बोलते हैं, शेर है, हम नहीं जाएंगे। That is the things that God is the Bible is talking here। Lazy person will blaming here and there। तो यहाँ पे बाइबल यही बता रही है कि आलसी व्यक्ति दूसरों पर दोष लगाता है। लायन हम लोग को मारेंगे, इधर खाएंगे, हम नहीं जाएंगे, एक काम में इधर जाएंगे, चर्च जाएंगे तो हम लोग को हिंदू लोग न मारेंगे, चर्च जाएंगे तो हमको क्या मुस्लिम लोग न मारेंगे, चर्च जाएंगे तो अरसी लोग हम लोग को मारेंगे, कोई नहीं मारेंगे। आपका अंदर लेजी है, your inside is lazy to go out। क्या है हमारे अंदर आलस है कि हम ही नहीं जाना चाहते। That is the Bible says that the lazy people will say, oh I will not go out, lion will kill me। तो आलसी लोग यही कहते हैं नहीं मैं जाऊंगा ना तो कुछ गलत हो जाएगा, मेरे को मारेगा, लेकिन आपका पास नहीं मारेगा। So I told them, so Arasi come to your house। I said नहीं आया। So people are like that, but they are lazy to go। लेकिन लोग आलसी होते हैं जाने के। So don't be like that। तो ऐसा हमें नहीं होना है। God hate। परमेश्वर को जो से God नफरत है। know your intention। परमेश्वर जानता है कि आपकी इंटेंशन, आपके अंदर के भाव क्या God है। know your heart। परमेश्वर आपका दिल जानता है। हम कभी-कभी lazy सास आना के ना, कई बार चर्च जाने में भी आलसी होता है हमें। हम excuse ढूंढते हैं, तो बहाना ढूंढते हैं। आज जजमेंट नहीं आया, तो हम कुछ जगह ढूंढते हैं पास्टर को बोलने के लिए, ब्लेम करने के लिए, लेकिन अंदर से लेजी है। पास्टर ना माँ आज तो नहीं आएगा, मेरे घर में ना विजिटर आ रहा है और मेरे घर में ना मैं उधर जा रहा है, लेकिन आपका अंदर का लेजी था जाने। So lazy people are like that। तो आलसी लोग ऐसे ही होते हैं। They will say, "Lion will kill me कि शेर आके खा if जाएगा I go out, अगर मैं बाहर गई। and this person will kill me, ये इंसान मुझे or this person will fight with ये me, इंसान लड़ाई or करेगा। this person will do काला जादू यही with काला me, जादू कर or देगा। this person will not give job, यही नौकरी नहीं देगा, or this person will not give money। ये पैसा नहीं देगा। Before you go, जाने से पहले ही you are lazy हम आलसी होते हैं and you think everything और सोच के बैठ जाते हैं। and you see, वो person मेरा को प्यार नहीं करता, मैं नहीं जाएगा, वो person मेरे को नहीं देगा। आप मालूम नहीं तो वो person बंधन 1000 करोड़ उनका हाथ में देना था, लेकिन आपका लेजी का वजह से आप कहना नहीं, वो मेरा को नहीं देता जॉब और मेरा को इंटरव्यू अच्छा से नहीं देता। But you make yourself the person you never met yet। तो अभी तक हम जिससे हम मिले ही नहीं है उसके बारे में पहले से ही दिमाग में बैठ सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम आलसी होते हैं। So don't be like that। हमें ऐसा नहीं होना है। Let us be active। तो हमें एक्टिव होना है। So the lazy people, they will say, "Oh, lion will kill me." They are in the road. Kala Jadoo will kill me, or Muslim will kill me, Hindu person will kill me. You just move out, you will see the victory। कई बार हम सोचते हैं ये हो जाएगा और चक्कर में हम आलस के चक्कर में बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे तो वो चीजें हमारे जीवन में आएंगी। So when you get out, you will see the अगर challenges। आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए वो चीजें नहीं है वहाँ पर। If you didn't fight, how you win? अगर कोई मुश्किल आती भी है आप लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? You need to fight, तो लड़ना तो पड़ेगा win। और
और जीतना भी पड़ेगा। Without fight, बिना लड़ाई के God will never have that. जीत ही नहीं You है। need to fight the Satan, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी not the शैतान human के being. साथ। You need to fight the laziness, इंसान से नहीं लड़ना है, so they will be active. But without fight the laziness, पर बिना आलस से लड़े the person become habit character. तो कोई इंसान आलस, That is how the Satan works. तो शैतान ऐसे ही काम करता है। Amen. आमीन। So this year don't be lazy तो इस साल हमें कोशिश करनी कि हम आलसी ना हो and don't be blamed. और दूसरों पर ब्लेम ना लगाएं। There is no lion at all. शेर नहीं है, There is no kalazadu at all. काला जादू भी नहीं है, There is no persecution at all. सताव भी नहीं है। But when you move it out, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं the Lord will bless तो us. परमेश्वर हमें बचाता भी है। Amen. Amen. And then also I will finish with follow the example of N. आप चींटियों को देखें, N are never lazy. चींटियां कभी भी आलसी नहीं होती हैं। N we see always busy. आप चींटियों को देख कभी खाली नहीं बैठती। Sometime in the house, घर में आप देखो, you put the rice, you put meat, you know, कभी N चावल is to चीनी कहीं में भी थोड़ी सी डाल के छोड़ दे। And sometimes we are very difficult. But N you will never see that they are every N will move. आप देखो हर चींटी घूमती ही रहती है And N is the N, the unity. और चींटी हमेशा एकता में चलती है। You didn't see N fighting. ये एक चींटी दूसरी चींटी से They लड़ाई live नहीं in करती। one hole. वो एक छेद बनाती है, Everyone. इतनी सारी चींटियां एक साथ काम करती हैं। And if they have something here, और अगर यहाँ पर कुछ है, they will inform one another. वो दूसरे को भी बताती होंगी। If they can't carry the rice because N is big and N is very और small, चींटी इतनी छोटी होती है, चावल का दाना उसके लिए इतना बड़ा है, then they will bring so many N. तो चींटियां अपने दोस्तों को लेके आती Then they will carry है और together. साथ में मिलकर उस चावल के दाने को उठाती है। That is how the N तो is. चींटियां ऐसे ही And so the Bible says, learn from N. इसलिए बाइबल कहती है चींटियों से सीखो। Turn to the scripture. होते हैं Proverbs chapter 10, 4 and 5, 4 to 5. Proverbs chapter 10, 4 to 5. नीति वचन 10, 4 और 5। Read. जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। And then 5. जो बेटा धूमकाल में बटोरता है वह बुद्धि से Then the Bible says, lazy hand bring poverty. Okay, I'm just reading there. You read the Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6, 9 नीति to वचन 6 6 to 9. That is talk about the end. Proverbs chapter 6. नीति वचन 6 का 6 से 9। हे आलसी 772 पेज नंबर 772। हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूमकाल के संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आप पड़ेगी। Amen. So the Bible said, follow the example of N. तो बाइबल कहती है चींटियों की तरह बने। N never lazy. चींटी आलसी नहीं होती, They always work hard. हमेशा मेहनत करती है। The winter is cold. आप देखो सर्दियों में कितनी ठंड होती है, N will work hard in summer. चींटियां सर्दियों में मेहनत करती They है, work hard. बहुत मेहनत They करती है, store. इकट्ठा करती है। So when the winter comes, गर्मियों में मेहनत करती है, जब सर्दियां आती हैं you did see the winter time in N. आप देखो सर्दियों में चींटियां नजर नहीं आती, But summer time you will see और गर्मियों everywhere में बहुत N. जगह दिखती है। corner सारी जगह में, रोड पे, घर पे, खाना में, सारी चीज N work hard करते हैं. So they are working hard for the winter. तो गर्मियों में मेहनत करती है सर्दियों के लिए। So when the cold come, cold time come, जब सर्दियां आती when हैं they cannot able to work it out, उसके बाद वो मेहनत नहीं कर पाती, the store that they have, तो उन्होंने गर्मियों में जो इकट्ठा किया है they eat. उसे खाती है। So God is telling us, तो परमेश्वर हमें कह रहा है don't be lazy. तो हमें आलसी नहीं होना। What's the end? चींटियों को देखो Work hard वो कैसे मेहनत so that you will sit in future. ताकि हम भी भविष्य के लिए आराम करने पाए। The work that you have now जो मेहनत आज हम कर रहे हैं in the future, भविष्य में, the time that you cannot work, उस समय जब आप काम नहीं कर पाएंगे, but you will eat your पर labor. आज जो आपने काम किया उसके फल आप तब खाएंगे। So here the Bible says, तो बाइबल कहती है put the summer end together and all their foods up. So winter come, there is a plenty to eat. You lazy people, how long are you going to sleep? Get up. तो यहाँ पे लिखा है आज तू कब तक सोता रहेगा, उठ जा। People are lazy to wake up. जो लोगों को उठने में आलस आता है These people are lazy. तो ये लोग आलसी होते हैं। Some people sleeping 12 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock.
हैं। I sometimes I'm wondering how. पास्टर सोचती कैसे? Me, if I sleep up to 6 o'clock, body भी pain होता है। मेरा को मांगते हैं उठो। Some lazy people will sleep 9 o'clock, 10 o'clock. तो जो आलसी लोग होते हैं 9 घंटे 10 घंटे सोते ही रहते हैं। They know there is a work, उन्हें पता है काम तो पड़ा है, but no break है लेकिन time थोड़ा सा बच जाएंगे, but time is not waiting. पर समय हमारा इंतजार नहीं करता, Time is running. समय भागता है। But lazy people sleep. पर आलसी व्यक्ति सोता ही रहता है। Even though the sleeping is not coming, कई बार तो नींद आती नहीं है, they are lazy. पर आलस आता है। Then put their blanket and. But if you sleep like that, पर अगर हम ऐसे सोते रह गए, who will work for you? तो हमारे लिए मेहनत कौन Who करेगा? will cook for you? कौन खाना बनाएगा? Who will earn money for you? कौन पैसा कमाएगा? So the lazy people are always sleeping. तो आलसी व्यक्ति सोता भी ज्यादा That है। is what the Bible says in verse 9. Get up. इसलिए 9वें वचन में बाइबल कह रही है, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? How long you will sleep? कब तक सोएगा? How long you will sit? कब तक बैठा रहेगा? How long you will dream? सपना करते फिजिकली कुछ नहीं मिलेगा। आपका सपना तो सो के ना, ओ मैं बिग ऑफिसर बन जाएगा। आप स्टार्टिंग नहीं करेंगे, कैसे बिग ऑफिसर बन जाएगा? आपका सपना तो मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है। आपका सपना तो मैं गुड वाइफ करना है। आपका सपना तो मैं गुड हस्बैंड करना है। आपका सपना तो मैं बिल्डिंग बनना है। आपका सपना तो मैं क्या था, बहुत चीजें हम लोग अप्लाई में सपना में, लेकिन if you are lazy, your सपना खत्म। तो हम चाहे कितने ही सपने देख लें, लेकिन जब तक उन सपनों के लिए मेहनत नहीं करेंगे, वो सपने कभी पूरे Your imagination so many things in हम life. सोचते बहुत सारी चीजें करने I की। want to do like this. I want to do like this. I want to become great. I want to become powerful. I want to become anointed. And I want to occupy the whole world. And I want to travel the universe. मुझे पूरी दुनिया में घूमना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये बनना है, हम सोचते हैं। But if you are lazy, पर मेहनत ही नहीं करेंगे, you will end that imagination. तो हमारी सोच वही खत्म हो जाएगी। Your dreams are finished all. आपके सपने सिर्फ सपनों में ही रह जाएंगे, पूरे नहीं होंगे। You have so many desires. आपकी इच्छाएं तो बहुत हैं, You have so many aims. बहुत सारी सोचा है करने के लिए, By sitting, लेकिन बैठे बैठे that you want to become a prime minister. आपसे बैठे हुए और सोच रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, Without work hard, पर मेहनत ही नहीं करी, you will never put into prime minister. तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। Your dream has there. आप सपना तो है, You have a desire there. इच्छा भी है, But you don't want to do पर anything. मेहनत नहीं But you करनी, have a dream. पर सपना है। मैं एक दिन तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मेरा पास सारे सिक्योरिटी हो जाएंगे, मेरा पास बंगला हो जाएंगे, मेरा पास फ्लाइट प्राइवेट जेट हो जाएंगे। सपना तो इतना अच्छा है, आप ड्रीम करके स्माइल करेंगे। But if you are lazy, that smile खत्म in that moment. तो लेकिन अगर हम सपने में सोच रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, तो सपने की मुस्कुराहट सपने में ही खत्म हो जाएगी। So when you have a dream, तो अगर आपको सपना तो work है, hard. अगर आपको कुछ सपना है, कोई In the इच्छा book of, है, तो मेहनत भी करें। In the epistle, the Paul said, run the race तो पौलुस कहता है कि अपनी दौड़ दौड़ो to win the prize. ताकि आप जीतने पाओ। Don't run the race to fail. आप इसलिए मत दौड़ो कि जीतना ही नहीं है। Paul said, run the race दौड़ो इसलिए to win the prize. ताकि आप जीतने भी पाओ। Everyone is running. हर कोई दौड़ तो रहा है, You must also run तो आपको भी to दौड़ना get है the prize. ताकि आप भी जीतने पाओ। By sitting, लेकिन बात से बैठे you will बैठे never get the आप prize. जीत नहीं पाओगे। By sitting, से बैठे by बैठे lazy, आलस करके you will never reward it. आप कभी नहीं You will never reward it. कभी आपको इनाम नहीं मिलेगा। Amen. आमीन। So lazy people, the Bible says, get up. तो आलसी लोगों के लिए बाइबल कह रही है उठो, Don't sleep longer. ज्यादा मत सो, Because sleeping brings poverty. क्योंकि ज्यादा सोने से गरीबी आती है। And then also here the Bible says, verse 10 again. 10, 4 and 5. Verse 10, 4 and 5. Lazy hand bring poverty, but hard work hand lead to wealth. तो 10 के 4-5 में लिखा है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। 5 तक. 5, जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। The English Bible says, lazy hand bring poverty. तो बाइबल में लिखा है, आलसी व्यक्ति के हाथ गरीबी लाते हैं। When you're lazy, नीति वचन 4 और 5। next you become नीति poor. वचन 10 का 4-5। Today many people are poor in India. आज बहुत सारे लोग भारत में क्यों गरीब हैं? Many people are begging. क्यों लोग
मांग रहे हैं, They are lazy to work. क्योंकि वो मेहनत करने में आलस करते हैं। They are. Yesterday I was listening one preacher. पास्टर गैरी में कल प्रचारक सुन रही थी, The Christian in the name of Jesus never beg. जो मसीही लोग होते हैं वो यीशु मसीह के नाम से भीख नहीं मांगते। You see everywhere. You will हाँ। never see यीशु मसीह के नाम से पैसा दियो, नहीं देखेंगे। God, the person who call upon the name of God, God provide every day, and those people are different from others. और इसलिए जो लोग जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह में मानते हैं वो उनके नाम से कभी नहीं मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। But the Hindu Muslim, पर आप हिंदू मुस्लिम लोगों को they देखो, take their God name, वो अपने देवी देवता का नाम लेते हैं उनके नाम से और उनके मांगते हैं। नाम से मांगते हैं, Because Satan is poor, क्योंकि शैतान तो गरीब है and when the Satan cannot give और provision. शैतान उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है। That's why here the Bible says, इसलिए बाइबल यहाँ क्या कहता lazy hand bring poor. है कि आलसी व्यक्ति के हाथ निर्धनता So the रखते हैं। people who are not having Jesus Christ in और their इसलिए life, जिन लोगों के जीवन में यीशु they मसीह will नहीं be है, lazy. वो हमेशा आलसी होते हैं, They will begging. भीख मांगते हैं, They ask money. दूसरों से पैसा मांगते हैं। Yes, sometimes people, they didn't have the hand, leg, they ask. हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके हाथ पैर कटे हुए हैं, इसलिए वो भीख मांगते हैं। But we never see in our place. But even the poor, even the people who are no blind, no hand, no leg, they never ask. पर पास्टर कह रही मैंने अपनी जगह पर तो जिन लोगों के हाथ पैर नहीं है, अंधे हैं, उनको भी भीख मांगते हुए नहीं देखा। God provide every day. परमेश्वर उनकी भी जरूरतों को पूरा करता है And they have a gift and talents. और उनके अंदर परमेश्वर कोई ना कोई खूबी जरूर In डालता my है। mother's house, पास्टर कह रही मेरी मम्मी के there घर is a में blind man. एक अंधा व्यक्ति है, He made a chair. वो कुर्सियां बनाता है। I see. पास्टर कह रहे देखा, I don't know how to make it. पास्टर कह रही मेरी आंखें मैं फिर भी नहीं बना सकती, वो बिना आंखों के बनाता है। He make. I also in my house there is a two short seats there. He is the one who make it. पास्टर कह रही मेरे घर में भी दो छोटी छोटी कुर्सियां हैं, वो कुर्सियां उसी व्यक्ति ने बनाई है। That plastic chair. प्लास्टिक की चेयर, कूड़ा, And he sell. वो बेचता है, And he earn a lot of money. पैसा भी कमाता है And he play keyboard nicely. और वो कीबोर्ड मतलब पियानो बड़े अच्छे से बजाता He है, used to sing. He used to play keyboard. कीबोर्ड बजाता He है, is the blind. वो अंधा है। See how the God has made him talents and gift, even though the blind, even though the no hand. आप ये देखें एक व्यक्ति जिसके पास आंखें नहीं है पर परमेश्वर ने कैसे खूबियां दी कि वो अंधे होने के बावजूद अपने हाथ से कुछ बना पा रहा है। But lazy men, the next they are poor. पर आप ये देखें जो आलसी व्यक्ति होता है वो गरीब रहता है। Lazy people will never prosper. आलसी लोग कभी भी उन्नति नहीं So पाते। if you are lazy, अगर हम आलसी हैं your next step is poor. तो हम गरीबी की ओर जा रहे हैं। And I will finish soon. Whoever during the summer, the lazy people, and then also the people who work hard, the sun and the harvest time come, they will have food. But the people who are not work hard, harvest time come, they will not have time. They have no food to harvest. नीति वचन 10:5 जो बेटा धूमकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। Let us turn to Proverbs 12. नीति वचन 12 खोलेंगे। Proverbs 12. Proverbs 12 chapter 24 and 27 read. Proverbs chapter 12. नीति वचन 12 का 24 और 27। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। 27 आलसी अहेर का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। Verse 24 says, work hard, become a leader, be lazy, become a slave. The person who work hard, जो लोग मेहनत करते हैं they become one day leader. वो किसी न किसी दिन प्रभुता जरूर मतलब लीडर बनते हैं। The person who work hard, जो इंसान मेहनत करता one day है they become the boss. एक दिन वो बॉस One day they become the prime minister. वो prime minister One day बनता है। they become the CEO. वो सीईओ One day they become the president. वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है। But the person who lazy, पर जो व्यक्ति आलस करता one है day एक दिन they become slave वो गरीब नौकर की तरह बन जाता है because of laziness. क्योंकि आलस है उसके अंदर। So if you not work hard now, तो अगर आप आज मेहनत नहीं कर रहे what you have now, तो आज भी जो आपके पास है when you finish, जब ये खत्म हो you जाएगा become a slave. तो आप नौकर बन जाएंगे। So don't be lazy. तो हमें आलसी नहीं होगा। Work hard now. मेहनत कर, Study hard now. पढ़ाई ज्यादा अच्छे से करनी है, Prepare hard now. आज ही तैयारी करनी है, Do job now. नौकरी आज करनी है, Do business now. व्यापार भी आज करना So that है in the future ताकि आने वाले समय you में have food to eat in तब your खाना house. हो हमारे पास खाने So के that you in the future ताकि भविष्य you में will live in big building. एक बड़ी बिल्डिंग में हम जी पाए, रह But पाए। if you are not work now, लेकिन अगर हमने मेहनत आज नहीं the करी building that you have तो now, जो बिल्डिंग आज है हमारे also पास it will sell एक दिन वो भी हम बेच के खा because of लेंगे poor, क्योंकि पैसा ही नहीं because of होगा, no money. पैसा ही नहीं होगा।
If you take a loan, अगर आपने अपने लोन तो उठा you लिया, are not work hard. मेहनत नहीं करी, Loan people will come and take your house. तो लोन चुका नहीं पाएंगे, लोन वाले घर उठा के ले जाएंगे। Work hard तो now, आपको मेहनत करनी है so they will reach in future. ताकि आप भविष्य में पहुंचने पाए और अच्छा खाने पाए। That's what the Bible is saying. इसलिए बाइबल कहती है Work hard, become leader. कि जो मेहनत करता है वो Lazy लेजी बनता becomes है, slave. लेकिन जो आलस करता है वो नौकर बन जाता है। And poverty is the result of continuous sin of laziness. और बार बार आलसी होने की वजह से आप गरीब हो जाते हैं। Today many people are poor आज क्यों बहुत सारे लोग गरीब हैं? because of laziness. क्योंकि आलस है, And laziness is a sin. और आलस एक पाप है। Bible saying. बाइबल कहती है So if you're lazy, अगर आज हम आलसी हैं that is a big sin. तो एक बड़ा पाप। If you're lazy to wake up, अगर हमें उठने में आलस that is आता a है sin. तो हम पाप करते If हैं। you're lazy to cook, हमें खाना बनाने that में is आलस a आता है, sin. ये भी हम पाप If करते you're हैं। lazy to study, अगर पढ़ाई करने में that आलस is a है, sin. ये भी पाप If है। you're lazy to go to school, अगर स्कूल जाने में आलस that है, is a sin. ये भी पाप If है। you're lazy to go to job, अगर जॉब पे जाने that में is a आलस है, sin. तो ये भी पाप है। That is the Bible talk तो about. बाइबल यही बता रही है। And another thing, Proverbs chapter 20 verse 13. Proverbs chapter 20 verse 13. 20 का 13। And then also 21:5. We will read first and we will close. Yes. नीति वचन 20 का 13, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। So Proverbs chapter 20 verse 13 say, if you love sleep, अगर आपको नींद से प्यार है, you will end poverty. तो आप गरीब हो ही जाएंगे। You are sleeping. आप सोते ही रहते हैं, One day no food. एक दिन खाना नहीं होगा, One day no money. ऐसा नहीं होगा। Sleeping money will not come. सोने से पैसा तो नहीं आएगा, Sleeping food will not come. सोने से खाना भी नहीं आएगा, Sleeping job will not come. सोने से नौकरी नहीं लगेगी, Sleeping business will not सोने come. से व्यापार नहीं You need आएगा। to wake up. हमें मेहनत करनी है, Search. ढूंढना है, Interview. इंटरव्यू देने Where हैं, is the work? कहाँ पर काम मिल रहा The है। Bible says search. बाइबल कहती ढूंढो, You will find. तो पालोगे। Knock. खटखटाओ, The door will open. खुल जाएगा You are तुम्हारा। sitting. The door will not आप open. सोचे बैठे हुए दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, नहीं You खुलेगा। are not searching. आप ढूंढ नहीं रहे हो, Things will not come. चीजें अपने आप हाथ में नहीं आएंगी। When you search. अगर आप ढूंढोगे You will find. तो जरूर पाओगे। Amen. आमीन। So don't be lazy. तो हमें आलसी नहीं होना है। And 21. नीति वचन 21 verse 5. 21 का 5, नीति वचन 21 का 5, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटी होती है। Bible says good planning, hard work lead into prosperity. But hasty shortcut lead into poverty. The person who is lazy जो lead इंसान into आलस करता poverty. है, But the person who work hard and good planning, you should have a good planning. जो इंसान मेहनत करता है, अच्छे से प्लानिंग करता है, वो जरूर अमीर होता है। You plan, आप प्लानिंग you करते need हो, to work hard. आप मेहनत करते हो, That bring prosperity. तो आपको लाभ ही होगा। But you plan, पर आपने प्लानिंग तो if it करी, didn't work, मेहनत काम नहीं हुआ, it will never bring to तो prosperity. आपको सफलता नहीं So मिलेगी। it will bring into poverty. तो ये गरीबी आपके जीवन में आती Some good planning, hard work lead into prosperity. है। तो अच्छी कल्पनाएं और अच्छी योजनाओं से आपको लाभ ही होगा। But the person who lazy, they will be killed by poverty. लेकिन जो लोग आलस करते हैं वो दरिद्र हो जाएंगे। And the 25 verse 25, same chapter 21-25. 25 का 25, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। See, despite the desire lazy person, even you are lazy, your desire, your plan, your dream also be destroyed. तो अगर आप आलस कर रहे हैं तो आपके सपने भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। Amen. आमीन। And then 20, was this see 20 also? Verse 20 verse 4. 20 का 4, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता है और कुछ नहीं पाता। See, lazy person planting the season time, no planting. आप ये देखिए, आलसी व्यक्ति जब उगाना चाहिए तब तो वो उगाता नहीं There है। is a planting. एक समय होता है। In summer you cannot plant a rice. आप देखिए, गर्मी के समय आप चावल नहीं उगा सकते। April, May planting time there. अप्रैल मई के अंदर ही In India. भारत में, Then you will be harvest July, August, ताकि September. जुलाई अगस्त सितंबर में आप कटनी काट पाए। But if you planting July, August, sunshine, you लेकिन आप will सोचो जुलाई अगस्त के दिन हम उगाएंगे चावल को। So now here the Bible talk about there is a season for तो everything. बाइबल बताती है हर एक चीज का एक सीजन है, एक समय है। Now when you are active, when now you are strong, when you are you need to be educate. तो आज अगर आप
बच्चे हैं, जवान है, आपको पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई ही करना चाहिए, मेहनत करने का समय है So तो that मेहनत you, करना the चाहिए। harvest time you will be harvesting. ताकि जब कटने का समय है, आप बूढ़े हो, बड़े हो, तो आज की मेहनत का फल आप तब खा But पाएंगे। if you are doing now, पर लेकिन अगर आज आप when the time comes, you have nothing to harvest. लेकिन अगर आज मेहनत नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, तो बाद में कैसे फल खाएंगे? Amen. आमीन। Let us turn to I was just so many Bible verses, but I'm taking here. Let us turn to Ephesians 5:15 and 16. इफिसियों 5 का 15-16 नया नियम, इफिसियों की किताब। I'll just read 2-3 verses and we will just finish. And I want to tell you also about so many things, but I will finish इफिसियों with 5 269 पेज नंबर हाँ। 269। इफिसियों 5 पास्टर 5 yes 15-16. Bible talk about 15-16 268 पेज नंबर। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Amen. So the Bible says, be careful तो बाइबल कहती है ध्यान रखो how you live. कैसे आप जी रहे हो। This world is evil. ये दुनिया बहुत बुरी If है। you're lazy, अगर आप आलसी रहे, if you're not careful, अगर आप ध्यान नहीं if रखोगे, you don't work hard, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, you will become poor. तो एक दिन आप गरीब हो। So there is a God say, यही बाइबल be बता रही है। careful. तो ध्यान The रखो, days are evil. ये दुनिया दिन बहुत बुरे हैं। And then don't be lazy. तो आलसी ना Be बनो, careful your life. अपने जीवन में ध्यान Don't रखो, be fool. बेवकूफ मत बनो, Don't be fool yourself. निर्बुद्धियों की तरह Don't मत fool रहो, others. और दूसरों को निर्बुद्धि मत Be समझो। wise. समझदार बनो So that you will be rich. ताकि तुम अमीर होने पाओ। Amen. आमीन। The Bible says, repent बाइबल कहती है पश्चाताप कर लो from your laziness, अपने आलस से, so that you will have enough food in the future. ताकि तुम्हें भविष्य में जितना चाहिए उतना होने पाए। And the Bible also say, lazy persons should not eat. बाइबल में तो ये भी लिखा है आलसी व्यक्ति को खाना ही नहीं खाना चाहिए। I will end here. So those who are lazy, तो जो लोग आलसी हैं, don't eat. खाना मत खाओ। This is the Bible say. Second Thessalonians, turn to Second Thessalonians. दूसरा थिस्सलुनीकियों Second Thessalonians 3:10. If anyone is not willing to work, let him not eat. दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10 New Testament. Second Thessalonians verse 3:10. Chapter 3 verse 10. Read. 3:10 287 पेज नंबर। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब यह भी आज्ञा तुम्हें देते कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी न खाए। आमीन। सो पेरेंट लोग बच्चा काम नहीं करते खाना मत दे, क्योंकि प्रभु बता रहा है। और आपका हस्बैंड भी काम नहीं करते तो खाना मत दे। प्रदीप, आपका हस्बैंड काम नहीं करते तो खाना मत दे। सेवन, आपका वाइफ काम नहीं करते तो खाना मत दे। और आपका मम्मी पापा लोग भी, आपका बच्चा शादी नहीं करता, स्कूल नहीं जाता, अपना काम खुद नहीं करता, खाना मत दे। ठीक है ना रे नबी? So, the Bible says lazy persons should not eat. The person who is not willing to work. तो बाइबल ऐसा बताती है जो व्यक्ति काम करने में मतलब नहीं मेहनत The करता, person who wants to sleep. जो इंसान सोना ही चाहता है, Don't cook for them. तो उनके लिए खाना ना बनाए। The person who don't want to go study. जो लोग जाके पढ़ाई नहीं करना चाहते, Don't give a food. तो उनके लिए उनको खाना ना दे। So there is the Bible say, if anyone is not willing to work, तो बाइबल ऐसा बताती है कि जो काम करने में मेहनत ना करे उनको खाना ना दे, let him not eat. उसे खाना ना दे। If you are not eating, अगर आप नहीं खा रहे हैं you will see how the hungerness is. तो आप देखेंगे कि भूखापन क्या होता है। Then you need to work hard. तो आपको मेहनत करनी है। When you work hard, अगर आप मेहनत करते हैं you will have food to eat. तो आपको खाना खाने के लिए मिलेगा। But if you didn't work hard, अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे because the food will not come to your table. तो खाना आपकी टेबल पे अपने आप नहीं आएगा। You need to prepare food to come to the table. आपको मेहनत करनी पड़ेगी खाने को टेबल पे लाने के लिए। Amen.